a big gathering. We are going to give them training on big data analysis. At the very outset, I would like to welcome you on behalf of the Institute and my behalf as participants of a day workshop in big data analysis with Group and SPARK, and the dignitaries on the dais and other respected audience of the dais. Thank you all for coming to Institute, which is named after former President and eminent labor leader led BVP. The institute was established in 1973 as an autonomous research institute on the initiative of the leading social scientists and eminent personalities. Late Professor B.V. Singh, a well-known labor economist, was founder director of the institute. In 1977, Professor T.S. Papova joined the institute as its first full-time director and nourished this organization in its formative years, developing it into a well faculties are well-led. He has nourished this organization and also brought up a very good organization, and we are all faculties are witness to that. Notably, in 1977, the institute was organized as a full-fledged institute by getting recognition from the Indian Institute of Social Science Research as a national social science importance, and also it has got the matching grant from the government of Uttar Pradesh. And with this ICSR, it was MHRD, now it is Education Ministry. Since then, Institute has been bringing under the scheme of regular financial assistance from the ICSR and has been regularly receiving financial support from the government of Uttar Pradesh through the planning department on a matching basis, and the Institute's research activities find significant place in policy making of the government of Uttar Pradesh as well as government of India. Our institute is, I can divide into the major three activities of our organization, that is on social science research, training and PhD. Basically, this organization is going to be celebrating the Golden Jubilee, and in this occasion I am very happy to see all of you officers to participate in this one-day workshop. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would request Dr. Divya Sarin to say a few words about the workshop. आज की इस वर्कशॉप में आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि जो SSS हमारी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पॉन्सर्ड, उसी में सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स हम लोग करा रहे हैं। उसमें एक वर्कशॉप है और कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर वर्क से रिलेटेड है। इन कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक से हम एक वर्कशॉप ऑलरेडी करा चुके हैं। एक सीरीज में दूसरी वर्कशॉप है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग पिछली वर्कशॉप में भी थे और इसमें भी है, जिससे कि ये वर्कशॉप उन्हीं लोगों को इसीलिए बार बार दी जा रही है, इस तरीके से वर्कशॉप में बुलाया जा रहा है कि आप जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क्स हैं उसमें अच्छी तरीके से इक्विप हो जाएं और जो भी आपकी नॉलेज है वो अपग्रेड हो जाए। इसमें आप लोगों को मिल के हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो लोग आज की वर्कशॉप में हडूप एंड स्पार्क के बारे में बताएंगे, बिग डेटा एनालिसिस विद हडूप एंड स्पार्क।
पिछली बार हमने स्कैसी और स्कैसी एंड क्या NLDK इसके बारे में जाना था। तो आई होप कि पिछली वर्कशॉप में भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आज भी आप लोग अपनी नॉलेज अपग्रेड करेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेकर के मेरा ये है कि हम मैक्सिमम टाइम अपनी इस वर्कशॉप में डिवोट करें और आप लोग यहाँ से सीख करके जाएं। हमें जो लोग सिखाने आए हैं वो भी मैक्सिमम हमें बताने का उनका प्रयास रहता है, तो वो मैक्सिमम टाइम उनको मिले। आज की इस वर्कशॉप के सफल आयोजन की मैं शुभकामनाएं देती हूँ आप लोगों को। थैंक यू। Thank you, ma'am. Now, moving for the first session. The session is related to concept of big data, introduction of Hadoop, basics of Hadoop, distributed file system, working of MapReduce, working of Yarn. Manager, and this will be managed by Shri Ghanshyam Sivhare sir. Sir, please come. ये लगा देना, बोर्ड लगा दो, जब तक हम बोर्ड से कर लेंगे। बोर्ड लगा दो, मार्कर दे देना। गुड आफ्टरनून ऑल। तो एक बार फिर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एक नए टॉपिक के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए। और मैं डायरेक्टर मैडम और जो गेट्स है उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं जो कुछ भी टॉपिक के बारे में मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। तो ये जो टॉपिक है बिग डाटा एनालिसिस यूजिंग हडूप एंड स्पार्क, ये हाईली टेक्निकल टॉपिक है। पहले तो ये समझ लें कि ये कोई बेसिक चीज नहीं है। अभी लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो भी एक हाईली मतलब टेक्निकल टॉपिक था। और ये उससे भी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि इसमें कई सारे टूल्स यूज करने होते हैं हमें, ठीक है। वहाँ पे तो चलो हमारे पास में एक आईडी था, उसी के ऊपर हम अपना सारा प्रोग्राम रन कर रहे थे। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरह के हम लोग टूल यूज करेंगे। और टूल इतने ज़्यादा है तो कई बार तो हमें इन टूल्स का नाम भी याद नहीं रह पाता, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बिग डाटा की, ठीक है। बिग डाटा मतलब बहुत बड़ा डाटा। तो बिग डाटा मतलब वर्ड अपने आप में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इसमें काम से ज़्यादा काम को मैनेज कैसे करना, वो सारी चीज़ें सोचनी होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप सब लोग दिवाली थी, घर पे सब लोग दिए जलाए होंगे, ठीक है। मैंने भी घर पे दिए जलाते थे, करीब 21 दिए जलाते थे। तो उसमें लिख के काउंट करो, एक बार दो बार काउंट करो, तो आसान था मेरे लिए। भाई दिए रख लिए और काउंट करके जला के मैंने वहाँ रख दिए। बट यही योगी जी ने करवाया, 24 लाख दिए जलाने हैं वहाँ पे, ठीक है। दिए जलाना मतलब काम बड़ा नहीं है, दिए जलाना आप जाते हम जा काम पर 24 लाख दिए जलाना, ठीक है। तो वो कितना बड़ा काम हो गया। तो उसको अपने आप को न्यूज में देखा था कि उन्होंने 25,000 वो वॉलंटियर्स उसके लिए बुलाए थे मैनेज करने के लिए, ठीक है। 25,000 लोगों को मैनेज करना, ठीक है। वो दिए जलाना तो एक छोटा सा काम था, बट दिए जला वो वॉल्यूम इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से
बहुत सारी चीजें हमें मैनेज करनी होती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे हमें बिग डाटा में भी होती है। ठीक है, डाटा इतना ज्यादा ह्यूज है, इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको मैनेज करना अपने आप में एक बड़ा काम हो जाता है। उसको ऑपरेशन करना छोटा काम है, ठीक है, बट उसको मैनेज करना एक बड़ा काम है। भाई डाटा है, ठीक है, तो बड़ा डाटा है, छोटा डाटा नहीं है, इतना बड़ा डाटा है कि उसको आप एक लोकेशन पर ही स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, डाटा इतना ज्यादा बड़ा है कि एक लोकेशन पे या एक कंप्यूटर पे आप स्टोर नहीं कर सकते, इतना बड़ा डाटा है। ठीक है, हम नॉर्मल जो कंप्यूटर यूज करते हैं घरों में 1 TB हार्ड डिस्क होती है, 2 TB हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर। ठीक है, सपोज 10 TB का डाटा आ जाए तो हम कैसे करेंगे मैनेज उसको? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तो इतनी तो हमारी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी नहीं है जितना बड़ा डाटा है। तो ये सारे इश्यूज आ जाते हैं बिग डेटा के साथ में। ठीक है, मार्क कर देते हैं। हाँ सर, ठीक। तो अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें मतलब कई सारे टूल्स हैं, टूल्स मतलब कई तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हमने बात की अभी जैसे 24,000 दिए जलाने हैं, तो उसके लिए सिर्फ दिए जलाना वो तो छोटा सा काम हो गया, जो मेन काम है वो छोटा सा काम हो गया। बट जो उसको कैसे इतने सारे 25,000 हमने वो वॉलंटियर्स बुलाए हैं और 24 लाख को काउंट कैसे करोगे कि ये 24 लाख है पूरे? ठीक है, मैंने तो जब 21 दीपक जलाए थे घर में तो 2 बार काउंट किया, 21 पूरे हुए कि नहीं, कोई कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 बार काउंट किया, तो वो 24 लाख को काउंट करके अपने आप में एक बड़ा काम हो गया। ठीक है, फिर उनको जलाना भी अब कैसे? एक आदमी जलाएगा तो क्या पता चला वो जलाते जलाते पीछे के बुझने शुरू हो गए, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये काम कोई एक आदमी तो कर नहीं सकता। तो इसमें फिर क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। कई सारे लोग मिलके ये काम करें। ठीक है, कई सारे लोग मिलके जब कोई काम करते हैं तो क्या होता है उससे वो काम पैरेलल प्रोसेसिंग में वो काम क्या हो जाता है? बहुत मतलब आसान तरीके से मैनेज हो जाता है। तो एक आदमी ने दिया जलाया, उसको बहुत टाइम लगेगा, पॉसिबल ही नहीं है एक आदमी से। तो फिर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ये टर्म है, ये याद रखना, हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, भाई आपको घर में कपड़ा धोना है, हम धो देते हैं बाथरूम में जाके, बट जब हमें 10, 15, 20 कपड़े ज्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। वॉशिंग मशीन में क्या होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग। एक साथ सारे कपड़े डालो, धुल गए, तो एक सेम एफर्ट में वो हमारा सारा काम हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हम यूज करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसमें जो सबसे पहले जो हम टूल यूज करते हैं दैट इज हडूप। पहले हम इसका वो समझ लेते हैं। तो सबसे जो पहला टूल है प्लेटफॉर्म में हमारा वो क्या है? हडूप। तो ये जो हडूप है ये अपने आप में इतना बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर हम बड़े बड़े डाटा को मैनेज कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो हडूप की 2 स्पेशलिटी है। पहले हम ब्रीफ समझ लेते हैं क्या क्या हम टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए आज के दिन क्या क्या डिस्कस है, उसके बाद फिर हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करें। तो ये जो हडूप सॉफ्टवेयर है ये 2 कॉन्सेप्ट यूज करता है, HDFS एंड सेकंड MapReduce। HDFS एंड MapReduce। अब HDFS क्या है? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। HDFS में हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो हडूप तो नाम है इसका, ठीक है, अपाचे का प्रोडक्ट है ये, अपाचे जो कंपनी है। ठीक है, ज्यादातर ये जो सॉफ्टवेयर है इसके वो टूल्स है सारे के सारे मैक्सिमम अपाचे से हैं। और ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं ये? तो ओरिजिनेट हुए ज्यादातर या तो फेसबुक है, गूगल है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनी है। क्योंकि जो इतना बड़ा डाटा है, डाटा इतना मतलब सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? इसको जरूरत होगी, और जरूरत किसको होगी? जिसके पास में बड़ा डाटा होगा। तो जो बड़ा डाटा है सबसे पहले किसके पास है? यही जो ऑर्गेनाइजेशन है, फेसबुक है, गूगल है, अमेजन है, इनके पास बहुत ज्यादा डाटा है, इतना बड़ा डाटा है। तो फिर इन लोगों को जरूरत पड़ती है, तो फिर सॉफ्टवेयर पड़ते हैं। तो ऑरिजिनेट वहां से होते हैं, फिर धीरे धीरे वो जब यूज कर लेते हैं अच्छे से, तो फिर उसको क्या करते हैं? उसको ओपन सोर्स बना के पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं ताकि दूसरे जो लोग हैं वो यूज करें। तो हडूप के 2 कॉन्सेप्ट है, HDFS है, MapReduce। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम मतलब एक फाइल है, ठीक है, बहुत बड़ी फाइल है, उस फाइल को कैसे स्टोर किया जाए। ठीक है, हमने बताया आपका जो पीसी है, पीसी की कैपेसिटी है
सपोज 1 TB 2 TB हमारे पास में डाटा है 10 TB का, 10 टेराबाइट मतलब बहुत बड़ा डाटा होता है आप ऐसे समझ लें। और उसको उतनी हमारी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी नहीं है, जी कैपेसिटी नहीं है तो क्या करेंगे हम? ठीक है, दो ऑप्शन है हमारे पास में, या तो हम अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क बढ़ाएं, कैपेसिटी बढ़ाएं, ठीक है भाई। यहाँ पे 150 लोगों की वर्कशॉप हो रही है, अब आप सपोज 250 लोग हैं तो क्या करेंगे भाई? 250 लोग तो यहाँ पे आएंगे नहीं, हमें नया हॉल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो अब 250 हॉल का एक मतलब नया हॉल लें, तो यहाँ पर हम अपनी हार्ड डिस्क की साइज बढ़ाएंगे, 10 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लें, ठीक है। बट हार्ड डिस्क लेने से ही बात नहीं बनेगी, ठीक है। हार्ड डिस्क को प्रोसेस भी तो करता है, तो फिर आपका फिर प्रोसेसर भी उतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उस हार्ड डिस्क के सारे डाटा को प्रोसेस कर पाए। रैम भी उसी हिसाब से होना चाहिए, खाली ये नहीं कि एक जगह आपने बढ़ा दी तो बड़ी मुश्किल, भाई हमने यहीं पे 250 या 500 लोग बिठा दिए, ये यहीं पे है, ये गेट है, क्या होगा? सारे लोग यहीं से आएंगे तो आते और जाते समय क्या होगा? क्राउड जमा हो जाएगा और ट्रैफिक जाम हो जाएगा, सबको जाने की जल्दी होगी, मैं पहले जाऊंगा और उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे जाके जाम लग जाएगा, तो ये इश्यूज भी आएंगे। तो ऐसी अगर हमने एक मशीन रखी है, एक मशीन पे हमने 10 TB या 20 GB का उसमें हार्ड डिस्क लगा दिया, और हुआ क्या? सब लोग वहीं से डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, वहीं से रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे जाके ट्रैफिक लग जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा। कई बार मतलब कम देखने को मिलता है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, और पहले मिलता था जब रिजल्ट आते हैं, ठीक है, जैसे CBSE का रिजल्ट आता है तो क्या होता है? कुछ देर बाद जो सर्वर है वो हैंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। वो क्यों कर देता है हैंग करना? क्योंकि इतनी सर्वर एक है, इतनी सारी रिक्वेस्ट आएंगी, लाखों रिक्वेस्ट आएंगी एक साथ, तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है जितना उसको प्रोसेसिंग करने की, क्या होगा? वो हैंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। आप तत्काल की टिकट बुक करिए, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी रिक्वेस्ट वो प्रोसेस कर रहा है कि वो आपका नंबर ही नहीं आ पाया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होगी। तो फिर हडूप ने सोचा कि उन्होंने ऐसा किया है कि भाई जो फाइल है एक जगह ना रखे, अलग अलग लोकेशन पे रखी जाए। जो फाइल है वो एक जगह ना रखे, अलग अलग मल्टीपल लोकेशन पे रखी जाए। तो जब मल्टीपल लोकेशन पे रखेंगे तो उससे क्या होगा? हमने भाई सपोज 10 नॉर्मल पीसी, ठीक है, जो 10 नॉर्मल पीसी है वो हमने यूज किए, ठीक है। और उन पीसी पे, एक पीसी पे हमने 1 टेराबाइट, दूसरे पीसी पे 1 टेराबाइट, ऐसे ऐसे करके हमने अपना डाटा स्टोर कर दिया, ठीक है। तो जब डाटा स्टोर हो गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आसानी से मैनेज हो गया, क्योंकि वो जो नॉर्मल पीसी है, ठीक है, नॉर्मल पीसी 1 टेराबाइट उसके अंदर हार्ड डिस्क इतना तो वो कर ही सकता है, ठीक है। तो जब वो डाटा वहाँ पे आसानी से मैनेज हो जाए, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि हम हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मैप रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस में क्या होता है? जब इसके पास में काम आया, कोई काम आया कि भाई हमें देखना है, मालूम करना है कि ये जो टॉप जो 10 कैंडिडेट हैं, ठीक है, सपोज CBSE ने रिजल्ट निकाला अपना, और रिजल्ट वो 10 टेराबाइट में है, और वो 1 टेराबाइट जो है 10 मशीन्स में रख दिया गया, ठीक है, डाटा को रख दिया गया। बट अब हमें ये मालूम करना है कि भाई जो टॉप 10 कैंडिडेट हैं उनके क्या नाम है, क्या उनके परसेंटेज है, वो हमें मालूम करना है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि डाटा तो कुछ एक मशीन पे, दूसरी मशीन पे, तीसरी मशीन पे, चौथी मशीन पे ऐसे डाटा रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? हमें क्या करना? हर एक मशीन को पे डाटा है, सबसे वो लेना पड़ेगा उनका टॉप वाला डाटा कौन सा है, ठीक है। भाई पहली मशीन से पूछा उनका टॉप 10 रिकॉर्ड दे दो, दूसरी मशीन से पूछा टॉप 10 रिकॉर्ड दे दो, तीसरी मशीन से पूछा, चौथी से पूछा, पांचवी से पूछा, ऐसे सबसे पूछ लिया हमने, ठीक है। अभी भी हमें नहीं पता, ठीक है, भाई 10 लोगों ने बता दिया, उसके हिसाब से वो टॉप 10 वाले हैं। जरूर नहीं वो एक्चुअल में हो सकता है दूसरी जगह जाता हो, ठीक है, तो उसको नहीं, तो फिर उसको हम क्या करेंगे? आपस में सफल कर देंगे, मिला लेंगे, ठीक है। जब उनको आपस में कंपेयर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो इसमें 2 स्टेप फॉलो होती है। एक स्टेप में क्या है? काम को बांट देना, और दूसरी स्टेप में क्या होता है? काम को छोटा कर देना, जो आउटपुट आ रहा है उसको छोटा कर देना। भाई जो रिक्वेस्ट आई हमारे पास में टॉप 10 मालूम करने हैं, तो हमने हर एक उसको बोल दिया सिस्टम को, तुम अपने टॉप 10 रिकॉर्ड बताओ, ठीक है, क्या बोले आपका बोल तो दूसरे उसको बोल दिया कि तुम अपने टॉप 10 बताओ, तीसरे को बोल दिया तुम अपने टॉप 10, तो सबने बता दिया। तब हमारे पास जो आया कितना आया? 10 रिकॉर्ड्स का डाटा आया, ठीक है। तो जो काम बांट रहे हैं उसको बोलते हैं हम मैप, और जो काम छोटा हो क्या है उसको बोलते हैं रिड्यूस। नाम से लग रहा है मैप कर देना, ठीक है। तो ये जो मैन जो सर्वर होता है,
ठीक है, जिसको मास्टर बोलते हैं या सर्वर बोलते हैं, जो भी नाम बोले, ये मैन बॉस होता है, ठीक है। ये खुद कुछ नहीं करता, ठीक है, ये एक्चुअल में खुद एक डाटा भी प्रोसेस नहीं करता। ये क्या करता, सारा मतलब जो इससे कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनको बोल देता है तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, ठीक है। काम करने के बाद में सबसे आउटपुट मंगा लिया, देख लिया। तो मास्टर का काम क्या है, मास्टर इज जस्ट लाइक अ बॉस है, उनने अपना सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो सारा मैनेज करने का काम करेंगे, ठीक है। तुम ये काम करो, इस चीज की जरूरत है तो उससे ले लो, उस चीज की जरूरत है तो उससे ले लो, ठीक है। तो वो काम किसका रहता है, मास्टर का। और बाकी जो कनेक्टेड है उनको क्या बोलते हैं, स्लैब, ठीक है, स्लैब या एग्जीक्यूटर वो या क्लाइंट, वो नॉर्मल जो काम करने का काम है वो एक्चुअल जो काम है वो वही लोग करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल चीज है वहाँ पे एक्चुअल काम होता है, डाटा प्रोसेसिंग या जो भी है। तो इसके ये दो मेन पिलर है, HDFS और MapReduce, ठीक है। जो इसका सारा जिम्मा सवालते हैं, भाई हमें करना क्या है, डाटा है और डाटा को प्रोसेस करना है, ठीक है। तो डाटा को मैनेज कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, HDFS को यूज करके उसको प्रोसेस करना है, क्या MapReduce को यूज करके। फिर अब इसकी जो प्रोग्रामिंग है ये बेसिकली लिखा है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो फिर इसमें आता है अगला नाम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इसका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक जावा क्या है। तो ये अपने आप एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये कई तरह की जो एप्लीकेशंस हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, जनरल प्रोग्राम में कुछ भी आप इसके अंदर काम कर सकते हो। बहुत ही मतलब अच्छी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसमें ये हडूप को डेवलप किया गया। हडूप भी एक सॉफ्टवेयर है, तो हडूप सॉफ्टवेयर जो होते हैं सॉफ्टवेयर किसी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, तो हडूप को जावा में बनाया। तो अब इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होगी, जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है MapReduce, तो MapReduce वाला जो पार्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जावा लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो जावा लैंग्वेज है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है सीखने के लिए, तो उसको मतलब हफ्ता 10 दिन का टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए थोड़ा सा, बट हमें बहुत ज्यादा उसको नहीं सीखना, हमें जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की बेसिक प्रोग्राम का सिंटैक्स क्या है, कैसे लिखते हैं वो हमें पता चल जाए तो भी हमारा काम चल जाता है। तो इसके प्रोग्राम देखे जाते हैं जावा में, जो जावा के प्रोग्राम होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज है तो प्रोग्रामिंग उसका जो स्टाइल है तो उसमें जो प्रोग्राम लिखेंगे वो बड़े होते हैं। फिर अब ये सवाल हुआ क्योंकि इसको तो कई तरह के लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई यूजर आया कि भाई हमें तो जावा नहीं आती, ठीक है, और हमें ये यूज भी करना है तो कैसे करेंगे, तो फिर उनके लिए भी एक ऑप्शन निकाला गया, उनके लिए भी एक टूल डेवलप किया गया और उस टूल का नाम है पिग। एक नया टूल डेवलप किया गया, टूल का नाम क्या है, पिग, ठीक है। PIG नाम थोड़ा सा अजीब है, बट हमें नाम से क्या करना, हमें काम से मतलब है, तो काम इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये जो काम है ये क्या करेगा, जो वहाँ पे सपोज हम जैसे एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाएंगे तो वो वहाँ पे बनता है करीब 100 लाइन का प्रोग्राम बनता है जावा में, ठीक है। और वही इस प्रोग्राम को 10 से 12 लाइन में वैसी काम को कर देता है, साइज कम हो गई और उससे कम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देखो लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है, बट अगर कोई टूल सीखना है तो टूल सीखने में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो अगली वर्कशॉप होगी वो एक टूल पर बेस्ड होगी, तो टूल सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टूल आप आसानी से सीख सकते हैं, बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो पिग ऐसे ही एक टूल है, पिग के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि ये जो काम वहाँ पे 100 लाइन में हो रहा है जावा लैंग्वेज यूज करके MapReduce का, वही सेम काम ये 10 लाइन के कोड में कर देता है। और भी इसके कई सारे काम है जो रिसोर्सेज है, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो ये जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा बड़े लेवल पे, ठीक है, ये तो उतना ही अच्छा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, बट अचानक से उसका CEO बदल जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन या तो बहुत अच्छा करने लगती है या फिर थोड़ा डाउन भी हो सकती है, जो भी है, बट CEO जब चेंज होगा तो कुछ होगा। तो ऐसा क्या बात है भाई, एम्प्लॉय तो वही की वही है सारा, सिर्फ एक बंदा बदल गया CEO उसका जो मेन बंदा है, वो बस बदलने से मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इतना फर्क कैसे पड़ रहा है, ठीक है। बाकी सारे एम्प्लॉय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे सब कुछ सेम है, ठीक है, बट एक बंदे के वजह से वो सारा, तो वो बंदा कर क्या रहा है, वो बंदा भी कुछ नहीं कर रहा देखा जाए तो, वो क्या कर रहा है, जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली मैनेज करना, ठीक है। करना क्या है कि वो जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली मैनेज करना, वो जो कर ले
ठीक है, वही मतलब सबसे बड़ा मतलब पर्सन है, सबसे बड़ा सीईओ जो रिसोर्सेज है अवेलेबल रिसोर्सेज उनको एफिशिएंटली यूज करते हैं। हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ जो एम्प्लॉय होते हैं परसेंटेज में वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते हैं, कुछ बीच वाले, तो सब तरह के लोग होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर प्रिंटर उनका कोई यूज ही नहीं है, पड़े हुए हैं, तो ऐसे कई तरह के, तो वो एफिशिएंट यूज नहीं है। ठीक है, जिसने एफिशिएंटली यूज कर लिया वो मतलब अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो ये पिग है, एफिशिएंटली यूज कर सकता है रिसोर्सेज को। तो ये पिग हुआ। देन इसके बाद आता है इसमें हाँ, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं यार्न। तो रिसोर्स पिग में एक और लैंग्वेज यूज होती है जिसको बोलते हैं पिग लैटिन। ठीक है, वो पिग के टूल्स के अंदर यूज करते हैं उसके प्रोग्राम लिखने के लिए। तो पिग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो जो प्रोग्राम है हमारा मैथ प्रोड्यूस वाला है, तो हमें जावा सीखने की जरूरत नहीं है, उससे बच जाते हैं। दूसरा हमें जो प्रोग्राम जो लिखा है उसकी साइज कम हो जाती है। तो यार ये एक और टूल है जो क्या करता है, जो रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंटली यूज करने के लिए हम यूज करते हैं यार। येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ध्यान से नहीं चलेगा। फिर अब इसमें आता है एक और कॉन्सेप्ट डेटा का। तो डेटा देखें तो डेटा शुरुआत में क्या होता था, हम जो डाटा यूज करते थे अभी भी यूज करते हैं टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल से सब लोग फेमिलियर होंगे। तो शुरुआत में जो डाटा यूज करते थे वो हम लोग ध्यान नहीं देते, टेक्स्ट फाइल हम लोग यूज करते थे। ठीक है, नोटपैड में लिखी जाती है। तो जो पुरानी लैंग्वेज होती थी, कोबोल, फोरट्रॉन, वर्ड स्टार, लूटर, जो बहुत पुराने लोग होंगे उसको पता था। सी में भी यही यूज करते हैं हम। ठीक है, तो एक टेक्स्ट फाइल बन जाती है अलग से। ठीक है, नोटपैड में भी आप जो बनाते हो वो भी क्या होती है, टेक्स्ट फाइल। तो डाटा जो स्टोर होता है वो हमारा टेक्स्ट फाइल में स्टोर होता है। अभी भी टेक्स्ट फाइल में स्टोर होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब कॉम्पैक्ट होती है, साइज इनका बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब इसको यूज करते हैं तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी मतलब नोटपैड की फाइल हार्ड डिस्क में पड़ी है, कोई पर्सन आएगा डबल क्लिक करेगा फाइल ओपन हो जाएगी, सारा डाटा उसको दिख जाएगा। कोई भी इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर आप नहीं लगा सकते। दूसरा, अगर इसके अंदर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्शन ऑपरेशन भी टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे भाई, बीच में इंसर्ट करना है, बीच में तो जगह है नहीं, वहाँ डाटा पड़ा हुआ, तो क्या करोगे आप, सारे के सारे डाटा को पहले खिसकाओगे, स्पेस देके उस लोकेशन पे जाके सारे डाटा को क्या करोगे, खिसकाओगे, जगह बनाओगे। ठीक है, तो जब जगह बनाएंगे तो डाटा को शिफ्टिंग करना वो भी है, अपने आप में जब बड़ा डाटा होता है तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये जो इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, अगर डिलीट करना है बीच में से तो खाली नहीं छोड़ सकते, फिर पीछे वाले डाटा को मूव करो। तो इंसर्शन डिलीशन ऐसे कई तरह के सिक्योरिटी, कई तरह के ऐसे इश्यूज थे। तो फिर बाद में जो है टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और फिर अलग अलग मॉडल इसमें डेवलप हुए। तो इसके बाद फिर एक हायरार्किकल मॉडल आया, उसके बाद फिर एक नेटवर्किंग मॉडल आया और उसके बाद फिर आया रिलेशनल मॉडल। वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, अभी भी पॉपुलर है, इसको बोलते हैं RDBMS। ये क्या है, RDBMS, तो उसे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है हमारी, जो डाटा है, डाटा को फिर टेबल फॉर्म में हम शो करते हैं। डाटा को क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं। तो टेबल में डाटा को अपने आप में मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आपको पता है रो नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर कौन सा है, तो आप तुरंत जा सकते हो उस रो के पास में या उस पर्टिकुलर कॉलम के पास में। और इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है इसको बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो वो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज, मतलब एक सिंगल लाइन की कमांड देनी होती है, उसको सीखने के लिए हमें बहुत ज्यादा सिंटैक्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उस लैंग्वेज को बोलेगा SQL। तो SQL में हमें बहुत मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एक जैसे हमें एक टेबल क्रिएट करनी है तो हमने कमांड दे दिया क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, कमांड क्या है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय है तो हमें बताना होगा उसके अंदर फील्ड कॉलम कौन कौन से होंगे, तो हम बता देंगे भाई उसके अंदर कॉलम है, एम्प्लॉय कोड एक कॉलम है, एम्प्लॉय का नाम एक कॉलम है, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ एक कॉलम है, एम्प्लॉय की सैलरी एक कॉलम है, डेजिग्नेशन कॉलम है। तो ये जो जो कॉलम है बस हम बता देंगे
और इसको रन कर देंगे तो हमारे क्या होगा, एक टेबल क्रिएट हो। देन फिर इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और डाटा दे दो ब्रैकेट के अंदर, तो डाटा इंसर्ट। तो वही सिंपल सी ये लैंग्वेज है, टोटल एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें लिमिटेड कमांड है, 8-10 कमांड है, और वही हम रन करते हैं। टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना, ठीक है, और भी कुछ मॉडिफाई करना रिकॉर्ड्स को। तो ऐसे कुछ बेसिक कमांड्स हैं, तो वही हम यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमांड है। तो ये काफी पॉपुलर है और RDBMS हम सब लोगों ने बहुत यूज किया। आप देखते हैं MySQL नाम सुना होगा आपने, Oracle नाम सुना होगा, MS Access की ट्रेनिंग चल रही है, वो आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है RDBMS सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये बहुत यूज होता है, बट इसकी जो खासियत है क्या है, इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। इसमें क्या डाटा होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब फिक्स फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हमें डाटा चाहिए, जैसे एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, वो जो डाटा फिक्स है, स्ट्रक्चर उसका पहले से फिक्स है। तो ये बहुत अच्छा डाटा माना जाता है, ठीक है। ऐसा डाटा अब मिलता नहीं है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जब तक ऐसा डाटा है तब तक ये RDBMS सॉफ्टवेयर का कोई कंपैरिजन नहीं है, इससे अच्छा कोई मैनेजिंग टूल नहीं है। MySQL है या फिर Oracle है, ठीक है, SQLite है, और Sybase, Ingres, DB2, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इसमें RDBMS को फॉलो करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ये यूज हो रहा है, बहुत बढ़िया यूज हो रहा है। बट जब डाटा आ जाता हमारा नॉन स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा आ जाता है, उसको कैसे मैनेज करें, वो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। डाटा हमारा कैसा आ गया, अनस्ट्रक्चर्ड, तो फिर उसको इसमें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कैसा होता है, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास ईमेल आई कोई, ठीक है, तो ईमेल का डाटा है सपोज आपके पास में, तो वो कैसा है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। भाई कोई एक ईमेल आएगी, ठीक है, तो वो 2 लाइन लिखी होंगी उसमें, कोई एक ईमेल होगी उसमें हो सकता है 50 लाइन लिखी हो, ठीक है। कोई ईमेल हो सकता है कि उसमें कुछ अटैचमेंट भी हो, अब अटैचमेंट में भी नहीं पता, किसी ने एक्सेल का डॉक्यूमेंट भेजा अटैचमेंट में, किसी ने इमेज भेजी अटैचमेंट में, किसी ने ऑडियो फाइल भेजी है, किसी ने वीडियो फाइल भेजी है। तो इस तरह के डाटा को हम RDBMS के थ्रू मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि RDBMS फॉर्मेट फिक्स है। भाई बता दो क्या टाइप क्या है, नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी है, और हम नंबर ऑफ फील्ड्स नहीं बता सकते मेल में, ठीक है। उसकी साइज भी नहीं बता सकते आप, पहले से पता ही नहीं आपको मेल। आप देखें अपना एक इनबॉक्स खोल के देख लीजिएगा, और जब देखेंगे उसको बनाने की कोशिश करेंगे कि टेबल फॉर्म में उस डाटा को हम स्टोर कर दें, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाटा का पता ही नहीं है, डाटा की टाइप आपको नहीं पता है, साइज नहीं पता आपको, तो कैसे उसको उसमें मैनेज करेंगे, तो वो ऐसे उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो फिर उसको मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करेंगे, हमें मैनेज ही करना है, तो कैसे मैनेज करेंगे उसको, जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है कैसे स्टोर करें हम इसमें। तो भाई हमें उसको ऑफलाइन अपने सिस्टम पे भी लेना है, तो कैसे स्टोर करेंगे, हम क्या करेंगे, भाई जो ईमेल होती है, ईमेल का एक वो निकलता है, एक फोल्डर बना लेंगे अपना, डेट या जो भी नाम देना है उसको नाम दे देंगे, और उसमें जो ईमेल है, ईमेल को क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन आता है उसमें, तो ईमेल का कंटेंट प्रिंट हो जाता है, वो उस फोल्डर के अंदर रख दिया, प्लस साथ में जो अटैचमेंट है वो उस फोल्डर के अंदर रख दिए। तो ये डाटा हमें कहाँ रखना पड़ेगा, हार्ड डिस्क के अंदर। तो ये डाटा हमने रख लिया, बट ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ठीक है। तो ऐसे ही जब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को यूज करने के लिए फिर ये SQL सफिशिएंट नहीं होता, RDBMS सॉफ्टवेयर सफिशिएंट नहीं होता। बट धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम क्या होगी, जो इस तरह का डाटा ये बहुत बड़ा डाटा हो गया, अगर आप देखेंगे फेसबुक गूगल पे देखेंगे बहुत बड़ा डाटा हो जाता है। तो फिर ये डाटा को एक मशीन पर भी प्रोसेस करना, मैनेज करना उतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर फिर हम वो यूज करते हैं NoSQL, ठीक है, जैसे MongoDB है और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, या फिर जो एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा भी होता है, ठीक है। तो ये कई तरह के जो चीजें हैं वो हमें धीरे धीरे मैनेज करते, क्योंकि अब डाटा डे बाई डे क्या करता है, ग्रो कर रहा है साइज में, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं चलता उतना ज़्यादा, ठीक है, बट ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनका अगर आप डाटा देखेंगे, फेसबुक या गूगल है, तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि डेली कितना डाटा जनरेट हो रहा है।
तो ये इसमें हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो गया। फिर हडूप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है प्रोग्राम करने के लिए। बाद में फिर लोग, हडूप की अपनी भी लिमिटेशन थी कि ये जो रियल टाइम डेटा है उसको प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है। रियल टाइम डाटा जैसे स्टॉक मार्केट है, ठीक है, तो वो हर सेकंड में वैल्यू चेंज हो रही है, डाटा की वैल्यू चेंज हो रही है, या फिर सैटेलाइट से डाटा आ रहा तो वो आता जा रहा एकदम जुड़ा। तो इस तरह के डाटा को, ये स्ट्रीमिंग डाटा को ये प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है। और एक और इसका ड्रॉबैक था कि ये डाटा कहाँ रहता है, हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट हमको मेमोरी, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के अंदर अगर हम मेमोरी देखें तो मेमोरी मोटे तौर पर 3 तरह की मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। एक को बोलते हैं हम प्राइमरी मेमोरी और एक को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी हम बोलते हैं जो रैम है या रोम है उसको मिला के बनती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन देखें तो क्या है, ऐसी मेमोरी जिसको प्रोसेसर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है उसको बोलते हैं प्राइमरी। और प्रोसेसर जिसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, किसी के थ्रू एक्सेस करता है तो उसको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो 2 मेमोरी होगी। तो अब देखो, जिसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं वहां पे अगर कोई काम करना है तो फिर आसान हो जाएगा। भाई हमने आपको कोई काम बोला, ठीक है, तो आपके हाथ में है, आप तुरंत कर देंगे। वो काम आपको किसी परिचित वाले को कराना है तो थोड़ा सा डिले होगा ना, मैं आपको बोलूंगा, आप फिर उनको बोलोगे, ठीक है। फ्रेंड के फ्रेंड को तो क्या होगा, थोड़ा सा डिले होगा। डायरेक्ट है, बोले भाई ये मेरे हाथ में काम है मैं तुरंत कर दूंगा, पर मेरे हाथ में उससे काम कराना तो क्या होगा, फिर उसमें टाइम लगेगा। तो वही चीज है, जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी वो प्रोसेसर किसी के थ्रू एक्सेस कर रहा है तो उसको फिर टाइम लग जाता है उसको एक्सेस करने में। आईओ प्रोसेसर होते हैं तो उसको एक्सेस करने में टाइम लग जाता है। बट जो रैम है, रैम के अंदर उसको किसी की जरूरत ही नहीं, वो तुरंत सारा डाटा एक्सेस कर लेता है, प्रोसेसर की डायरेक्टली। तो रैम से वो आसानी से डाटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तीसरी एक और कॉन्सेप्ट आजकल यूज होने लगा, कैशिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक कैश मेमोरी भी होती है और कैश मेमोरी वो प्रोसेसर का ही पार्ट होती है, ठीक है। जो कैश मेमोरी है, जो हम रैम बढ़ा सकते हैं, हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हैं, बट कैश नहीं बढ़ा सकते। अगर कैश बढ़ानी होगी तो हमें पूरा प्रोसेसर को ही बदलना पड़ेगा। तो कैश मेमोरी होती है वो प्रोसेसर का ही पार्ट होती है। कैश मेमोरी और ज्यादा पार्ट होती है, जैसे रैम पार्ट होती है हार्ड डिस्क से, ऐसी कैश मेमोरी पार्ट होती है किससे, रैम से। तो कैश में फिर अब ये 3 तरह की मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ेगी, बोलते हैं कि अच्छे सर तो अच्छा भाई हार्ड डिस्क की जरूरत है, पूरा रैम बना दो। बट रैम की अलग प्रॉपर्टी है, रैम फास्ट होती है, कॉस्टली भी होती है और उसमें वो टेम्परेरी स्टोर के लिए ही डाटा यूज होता है। वो एक बार उसमें जो डाटा आया, पावर गई तो डाटा सारा बहुत हो गया था, परमानेंटली स्टोर हार्ड डिस्क, ठीक है। फिर बोला जब रैम है तो रैम के बाद कैश की क्या जरूरत पड़ेगी, कैश इसलिए क्योंकि कुछ डाटा को हमें और स्पीड अप करना है, ठीक है, काम को और स्पीड अप करना है तो फिर वो रैम कैश मेमोरी के अंदर रहता है। तो कैश की साइज कम होती है, कैश केबी में होती है और ये जो हमारी रैम है, रैम 8 GB या 16 GB या 32 GB इस साइज में होती है। हार्ड डिस्क है वो 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट की साइज में होती है। तो एक बैलेंस बनाना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो हडूप है, हडूप डाटा कहाँ से प्रोसेस करा, सेकेंडरी मेमोरी से। हडूप डाटा कहाँ से प्रोसेस करा, सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है। बट ये जो है इसका एक एडवांस वर्जन आया, वर्जन या एडवांस टूल है स्पार्क, ठीक है। हडूप करीब 2000 में 20-22 साल पहले बना था और ये जो स्पार्क वो 10-12 साल पहले बना। तो जो चीज बाद में आती है उसमें ज्यादा फीचर्स होते हैं और वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो जो स्पार्क है, स्पार्क क्या कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी को यूज कर रहा है, रैम को यूज कर रहा है। जब रैम को यूज करेगा तो प्रोसेसिंग फास्ट है, ठीक है। जब रैम को यूज करेंगे तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है। भाई आपने मुझे काम बोला, मेरे हाथ में तुरंत कर दिया, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। बट जब मैं किसी के थ्रू कराऊंगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, किसमें, स्पार्क है, ठीक है। तो स्पार्क के अपने एडवांटेज है, आगे देखेंगे डिटेल में। तो पहला फायदा ये है कि रैम के अंदर इसका सारा डाटा रहता है और दूसरा स्ट्रीमिंग डाटा को भी प्रोसेस कर सकता है। स्ट्रीमिंग डाटा मतलब हम जैसे कोई लाइव डाटा आ रहा है, स्टॉक मार्केट से डाटा आ रहा है, सेंसर से डाटा आ रहा है, कहीं से भी जो लाइव डाटा आ रहा है, फ्लाइट से लाइव डाटा आ रहा है, तो वो लाइव डाटा को भी पकड़ के प्रोसेस कर सकता है। वहाँ से खींचा डाटा को प्रोसेस किया, छोड़ दिया, अगला डाटा लिया, प्रोसेस किया, छोड़ दिया। तो ये स्ट्रीमिंग डाटा को भी बड़े आसानी से प्रोसेस कर लेता है कौन, स्पार्क, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें जो हडूप है, हडूप के पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, HDFS एंड MapReduce, ठीक है। बाकी कुछ और काम करने हमें तो उसके लिए फिर अलग से टूल इसमें इंस्टॉल करने होते हैं। जैसे हमने एक पेग इंस्टॉल किया, एक यार्न इसके ऊपर अलग से इंस्टॉल किया मैनेज करने के लिए। ऐसे ही एक और टूल है HBase और एक है हाइव,
इनकी भी जरूरत पड़ जाती है हमें, ठीक है। तो जो HBase है, HBase कॉलम ओरिएंटेड डाटा है, थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। और जो NoSQL पे काम करता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है उसको हमें स्टोर करना है, रिटर्न करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, HBase, ठीक है। और ये जो हाइव है, ये जो रिलेशनल टाइप का डाटा है, स्ट्रक्चर्ड डाटा, उसके लिए यूज करते हैं। तो हडूप के अपने पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, HDFS और MapReduce। बाकी जो काम करने हैं तो हमें अलग अलग टूल यूज करने पड़ेंगे। वो टूल कौन कौन से, बिग है, यार्न है, HBase है और हाइव है। बट स्पार्क है, स्पार्क ने अपने खुद के ही टूल बनाए हुए हैं, जो भी काम करना है स्पार्क का अपना इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो स्पार्क के लिए अलग से हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, हालांकि वो इनसे भी मिलजुल के काम कर सकता है। अगर स्पार्क पे हमें HBase यूज करना है तो हम HBase को भी कनेक्ट कर सकते हैं, हाइव को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यार्न को भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके पास खुद के भी ये सारी इसके अल्टरनेट है, प्लस अगर आपको ये ज्यादा कंफर्टेबल है तो ये आप यूज कर सकते हो। तो ये उसके अपने फायदे हैं स्पार्क में, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सा ओवरव्यू लिया जो हम आज डिस्कस करेंगे, उसका एक ट्रेलर दिया है, ठीक है। अब मूवी शुरू करते हैं, हम चीजों को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो अभी तो सारा ऊपर से गया हुआ, तो अभी डिटेल में हम शुरू करते हैं। तो हडूप किस लिए, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। अभी डिटेल में करेंगे तब थोड़ा सा और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। तो डाटा विच आर वेरी लार्ज इन साइज कॉल्ड बिग डाटा, ठीक है। अगर हम बिग डाटा की डेफिनेशन देखें तो डेटा विच आर वेरी लार्ज इन साइज इज कॉल्ड बिग डाटा। तो कोई भी ऐसा डाटा जिसकी साइज बड़ी है, बट साइज बड़ी है ये अपने आप में काफी नहीं है, कुछ और भी होना चाहिए बिग डाटा बनने के लिए, ठीक है। साइज बड़ी है वो ठीक है, बट कुछ और भी होना चाहिए। नॉर्मली वर्क ऑन डाटा ऑफ साइज एमबी, जो कि हमारी जो फाइल्स होती हैं, आप देखेंगे आपका इवन जो डाटा होगा तो वो डाटा एमबी से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, भले उसमें लाखों रिकॉर्ड्स होंगे। मैंने भी कोई फाइल देखी, टेक्स्ट फाइल देखी, लाखों रिकॉर्ड्स है उसमें, बट साइज देखेंगे तो केबी या फिर एमबी में डाटा होता है। बट जब यहाँ पे जो डाटा होता है वो किसमें होता है, साइज का होती है टेराबाइट, ठीक है। तो टेराबाइट या फिर पेटाबाइट, आजकल पेटाबाइट भी यूज होता है, ये लोग यूज करते हैं, वहाँ पे पेटाबाइट भी यूज करते हैं। तो ये टर्म्स है 1990 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है जॉन आर मैसी, उन्होंने इसको फादर ऑफ बिग डाटा बोला जाता है, ज्यादा इस पर काम किया। बिग डाटा इज कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज ह्यूज इन वॉल्यूम यट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो जो डाटा है वो तो वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है ही, बट अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी डाटा ग्रो कर रहा है। जैसे ट्विटर है, इनका ऐसा नहीं कि बस खत्म हो गया डाटा, इनका डाटा अभी भी पर सेकंड ग्रो कर रहा है। अच्छा, इसका बताइए आज लिखा ना एजुकेटेड 90% डेटा, जैसे कोई एग्जांपल बताइए क्या है 3 इयर्स में जनरेटेड एग्जांपल कोई इसका है कौन है क्या चीज जो लास्ट है। हाँ, it is data with so large size that complexity that none of technical data 3 इयर्स इसका क्या यूज मतलब क्या मतलब इसका। हाँ देखो, अभी जो डाटा है, डाटा जनरेट होने की स्पीड बढ़ गई। अरे इसलिए सर ऐसे ही, ठीक है। जो डाटा है ना, डाटा अभी आजकल जब से ये इंटरनेट आया है ना, तब से ये डाटा जनरेट होना शुरू हुआ है, ठीक है। पहले आप देखेंगे जो लोग थे, फेसबुक है या ये चीजें ऐसी जो सोशल मीडिया ऐप है, इनको कम यूज करते थे। बट अब देखेंगे ना, छोटे छोटे बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब यूज करने लगे। तो जब यूजर बढ़ेंगे तो क्या होगा, डाटा भी जनरेट होगा, ठीक है। तो अब जो डाटा ग्रो होने की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। तो इवन जो बोलते हैं जो डाटा जो है हमारे पास में टोटल, वो सबसे जो डाटा अगर हम पिछले 20 साल का डाटा देखें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो डाटा है वो अभी लास्ट के 3-4 साल में ही जनरेट हुआ है।
डाटा आपके पास नहीं है। हम लोग के पास मतलब डिपार्टमेंट नहीं, मतलब वैसे कौन सा डाटा है? देखो आप डाटा ये है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपना मोबाइल खोल के देख लीजिए, उसमें कितना डाटा है पता चल जाएगा आपको। कितने सारे फोटो पड़े होंगे, फिर आपको इतना टाइम लग जाएगा, आपको बोले कि आप क्लीन कर दो तो आप क्लीन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे एक छोटी सी डिवाइस के अंदर इतना सारा डाटा हम अकेले यूज कर रहे हैं, वो मतलब धीरे धीरे यूज कर रहे हैं, तब उसमें इतना डाटा हो गया कि हम उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। इतना फोटो हो गया, मैं एक महीने से सोच रहा हूँ उसको क्लीन करना है, तो मैं क्लीन करने से अच्छा है इसका बैकअप लेके उस पर डाल देता हूँ मैं, और उसको क्लीन नहीं कर पाया हूँ। प्रॉब्लम है डाटा इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है। ठीक है, हमें एक फोटो की जरूरत है, हम 10 फोटो खींच लेते हैं, और उसमें जब काम की फोटो 9 फोटो बेकार है, तो हम उनको डिलीट कैसे करें? उसके लिए तो हमें एक एक फोटो देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसको सबको डिलीट करना तब तो आसान है, उसके अंदर क्लीन फंक्शन होता है, सारी फाइल्स को डिलीट कर दे, बट हमें सिलेक्टेड फाइल्स रखनी भी है, तो वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो जब यहाँ पे ये हालत है छोटी सी डिवाइस के अंदर, तो सोचो जो फेसबुक है वो करोड़ों लोगों का डाटा मैनेज कर रहा है, तो उनके पास कितना डाटा होगा। ठीक है, तो वो जो कंपनी है, ये देखो बिग डाटा, ये मतलब आपकी और हमारे वैसे ये नहीं है। ठीक है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं, बट हम इसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा डाटा है नहीं। हाँ, अगर हम जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, वहां जाके जॉब करते हैं, उनके पास डाटा है, वहां पे जाके ये सारी चीजें प्रोसेस करेंगे। देखो होता क्या है कि हमें ये चीज है, बिग डाटा जो टॉपिक है, आप सीखे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं भी सीखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये है कि हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है, ये बिग डाटा कोई आप जाते थे कल अपना ऑफिस में बिग डाटा इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा। ठीक है, बट ये क्या है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक वही एक प्रयास है कि आपको पता हो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मार्केट में, उनको आप उनके बारे में पता हो, कोई पूछे तो हमें भी लगे, क्योंकि ये चीजें देखो आगे चल के मार्केट को डोमिनेट करेंगी। ठीक है, अभी हमें पता नहीं लगा, बट ये बिग डाटा अपने आप में चलता है, इसको इतनी सारी वैकेंसी निकलती है बिग डाटा के ऊपर, अगर मतलब देखें इसको स्लाइड करेंगे तो पता चल जाए। ठीक है, आप एक सर्च कर लें गूगल पे, ठीक है, कि जो है मुझे बिग डाटा आता है, तो आप देखेंगे कितने सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उनका अगर आप सीखते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। हमें जॉब नहीं करना कोई एक अलग बात है, बट जो यंग लोग हैं उनको जॉब करना है, उनके लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, ब्लॉकचेन, ये क्या है, नई नई फील्ड्स है, IoT, ये नई नई फील्ड्स है, तो इनके लिए उनके लिए नौकरी के रोजगार के अवसर ज्यादा है, इसलिए वो इन सब चीजों को सीखे। तो हमें भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए आपके डिपार्टमेंट का ये प्रयास है कि आप सब लोगों को भी ये टर्म पता हो। कोई बोले बिग डाटा तो हमें ऐसा ना लगे ये क्या होता है, कैसे होता है। तो एक वो चीज हम लोग बता देंगे बिग डाटा को तो बड़ा डाटा है, लेकिन नहीं, वही तो प्रयास है कि आप अंदर भी बता पाए। शाम को बात करेंगे आपसे, हम ये बता देंगे, पूछे इसके बारे में हम लोग सुन खड़ा रहेंगे। नहीं, आप शाम को बात करेंगे आपसे, ठीक है सर। ठीक है, तो ये डाटा जनरेट हो रहा है और आजकल कुछ ज्यादा स्पीड से जनरेट हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देन सोर्सेस ऑफ बिग डाटा, बिग डाटा आ कहां से रहा है? ठीक है, अगर हम देखें तो बिग डाटा आ कहां से रहा है? भाई हमारे डिपार्टमेंट से नहीं आ रहा बिग डाटा, कहां से आ रहा है? ये देखें, सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है यहाँ सबसे ज्यादा डाटा होता है। देन ई-कॉमर्स साइट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, देखेंगे वहाँ पर हजारों क्लाइंट्स, कस्टमर्स उससे कनेक्टेड है, रिव्यू दे रहे हैं, तरह तरह का डाटा है उसके अंदर। देन वेदर स्टेशन, वहाँ पे भी देखते हैं कि हम वहाँ सेंसर से डाटा आता है, सैटेलाइट वगैरह से बहुत बड़ा डाटा होता है वो भी। टेलीकॉम कंपनीज है, एयरटेल, वोडाफोन और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास देखेंगे लाखों कस्टमर्स हैं इनके। देन शेयर मार्केट ही अपने आप में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मतलब डाटा जनरेट हो रहा है, उसके अंदर भी बताते हैं हजारों सैकड़ों कंपनी होती है और हर सेकंड में रेट बदलता रहता है उनका, प्राइस जो रहते हैं कंपनीज का, स्टॉक का, वो हर सेकंड में रेट बदलता रहता है। तो वो डाटा, सारा डाटा है जो भी बदल रहा है। फिर फॉलोइंग आता है टाइप ऑफ बिग डाटा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये 3 तरह का डाटा होता है। बात करें स्ट्रक्चर्ड डाटा की, तो डाटा कैन बी स्टोर्ड लैपटॉप बदल दिया था क्या? तो वो वाला इशू कर रहा है। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा स्लाइड चेंज हो गई थोड़ी सी। तो ये तो ये डाटा 3 तरह का हमने डिस्कस किया था। एक तो स्ट्रक्चर डाटा, स्ट्रक्चर डाटा जो है वो सबसे सिंपल होता है, सबसे अच्छा डाटा होता है।
ठीक है, जो हम लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉई का डाटा जो हम लोग यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर डाटा ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में जो डाटा होता है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर डाटा। देन सेमी स्ट्रक्चर डाटा, सेमी स्ट्रक्चर डाटा भी होता है, ठीक है। तो सेमी स्ट्रक्चर डाटा में क्या है कि प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में तो नहीं है वो, बट उसको देख के हमें कुछ पैटर्न पता लग जाता है, ठीक है। तो जो फाइल्स के एग्जांपल्स हैं जो कंप्यूटर में जो यूज करते हैं हम, जेसन फाइल्स होती है या एक्सएमएल फाइल्स होती है, वहाँ पे इस तरह का डाटा जनरेट होता है। देन एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि यहाँ पे ना तो डाटा की साइज फिक्स है, ना ही डाटा की कोई वो फिक्स है, साइज फिक्स है, ना उसकी कोई फील्ड, तो पता नहीं कौन कौन सी मतलब कितनी फील्ड हो सकती है, बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएबल टाइप का ये डाटा है। ये माउस नहीं चल रहा, डाटा के अंदर करनी चाहिए। हाँ, वही स्लाइड का आधा मुझे दिखा दे। हाँ, ये इसके लिए फिर हम टूल यूज करते हैं, आगे चल के डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो डाटा है हम वहाँ पे HDFS में लेके जाना है हमें, ठीक है, बड़ा डाटा है, ठीक है, डाटा छोटा नहीं है, तो उसको वहाँ पे हमें लेके जाना है, तो उसके लिए भी टूल यूज होते हैं। क्योंकि मेन यहाँ पे प्रोसेसिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, जो प्रोसेसिंग है, बट वो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो गई कि डाटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमने से डिस्कस किया, दिए जलाना वो बड़ा काम नहीं है, बट 24 लाख दिए जलाना वो एक बड़ा काम। तो वहां से चला दें। तो उसके लिए जो पूछ रहे हैं उसके लिए टूल आता है स्पूफ। ये टूल है स्पूफ। इसका यही काम है कि भाई जो डाटा है, ठीक है, हमारी मशीन पे डाटा है उसको HDFS पे लेके जाना है, या जो HDFS के पास डाटा है उसको हमारी मशीन पे लेके आना है, ठीक है। तो ये उसके लिए फिर एक और टूल यूज करना होता है, तो वो ये काम आसानी से कर देता है। नहीं, छोटा सा काम है ना सर, तो कर क्या रहा है भाई, वहां से फाइल आई, इसने यहाँ रख दी, यहाँ से फाइल आई वहां पे रख दी, छोटा सा काम होगा उसका, तो ये काम छोटा सा ही माना जाएगा, ज्यादा बड़ा काम नहीं। बट ये है कि अलग अलग सोर्सेज से डाटा ले सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि भाई डाटा की जो फॉर्मेट है, टाइप है, वो कुछ भी हो सकती है। भाई डाटा हो सकता है आपका एक ऑरेकल के अंदर है, वहां से डाटा आ रहा है, या डाटा किसी ने रखा है SQL सर्वर है, वहां से डाटा आ रहा है, किसी ने डाटा अपने एक्सेल में रखा हुआ है, वहां से डाटा आ रहा है, किसी ने टेक्स्ट फाइल में डाटा रखा है, वहां से आ रहा है, तो अलग अलग जगह से मतलब डाटा आ सकता है ना। तो इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए ना कि हर तरह के डाटा को रीड करता है, ठीक है। वो वाली नहीं है, कौन सी? हमारा लैपटॉप नहीं होता है ना, हो गया आप डेस्कटॉप पे जो फाइल है देखिए उसमें आप ही का लैपटॉप। नहीं, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो डाटा देख रहे हैं, ये हम डाटा का कैसा स्ट्रक्चर डाटा है, सिंपल है, और ये हमें मतलब क्लीन डाटा बोलते हैं या सबसे अच्छा डाटा है ये है देखो सेमी स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि सेमी स्ट्रक्चर डाटा कैसा होता है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। ठीक
है, पैटर्न कैसे समझ में, यहाँ पे लिखा रिकॉर्ड, REC रिकॉर्ड, फिर यहाँ पे लिखा नेम, फिर यहाँ पे एक नाम आ गया, फिर नेम को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये जो सिंबल होता है वो तो होता है क्लोजिंग सिंबल होता है, ठीक है। तो एक पैटर्न बन गया, दूसरा पैटर्न सेक्स, ये मेल है, फिर से इसको क्लोज कर दिया, फिर एज को क्लोज कर दिया। तो जो इस तरह का डाटा होता है उसको बोलते हैं क्या हम, सेमी स्ट्रक्चर डाटा, कि एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो हमें समझ में आ रही है। तो ये XML फाइल का एक छोटा सा कोड है, तो XML फाइल है या JSON फाइल है, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। फिर ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में तो फिर ये सारी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो अगर आप जैसे गूगल सर्च करते हैं या अमेजन पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ठीक है, आप अमेजन पे एक प्रोडक्ट सर्च करके देखिए, अब उसका जो आउटपुट आएगा, तो आउटपुट देखेंगे, उस आउटपुट में कहीं पे टेक्स्ट होगा, इमेजेस भी होंगी, वीडियो भी होगा प्रोडक्ट के बारे में। वो कैसा डाटा है, वो सारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे सेव करोगे आप, नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो वो डाटा है अनस्ट्रक्चर्ड। एप्लीकेशंस ऑफ बिग डाटा, तो ये अगर हम देखें तो ये वो एरियाज है जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, और ये सारे के सारे एरियाज जो हमारी वो रियल लाइफ से रिलेटेड है, जैसे बैंकिंग है, कम्युनिकेशंस है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, एजुकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग, नेचुरल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस। तो ये बिग डाटा धीरे धीरे क्या है, हम लोगों की लाइफ से जुड़ गया है, हम सभी यूज करते हैं। तो देखो फेसबुक हम यूज करते हैं, ट्विटर हम यूज करते हैं, तो ये सारे के सारे हम कहीं ना कहीं बिग डाटा को कंट्रीब्यूट करने में या यूज करने में कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। बिग डाटा इन मार्केटिंग, बिजनेस इनसाइट्स, बिग डाटा इज कन्वेंशनली अंडरस्टूड टर्म। बिग डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी तो हमने समझ ली थी, क्या, बिग साइज। एक प्रॉपर्टी तो हमने समझ ली थी, क्या है, वो बिग साइज है, ठीक है। बट साइज बिग होना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि वो डाटा बिग है, ठीक है, या साइज स्मॉल है, ठीक है, तब भी ये जरूरी नहीं है कि वो जो है स्मॉल डाटा है। जैसे सपोज हमने बोल दिया 1 GB डाटा, ठीक है, तो 1 GB बहुत छोटा सा डाटा होता है, हम हार्ड डिस्क में आसानी से स्टोर कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो 1 GB डाटा तो बहुत छोटा डाटा होता है। बट अगर हमने बोल दिया 1 GB पर सेकेंड, क्या बोलते हैं 1 GB पर सेकेंड, तो क्या बन गया वो बिग डाटा। आप समझ रहे, 1 सेकेंड में 1 GB डाटा बन रहा है, तो वो तो एक दिन में कितना डाटा हो गया, ठीक है, तो वो डाटा बन गया। फिर तो वो और भी कई सारी प्रॉपर्टी है, तो साइज से फर्क नहीं पड़ता, साइज अकेले से हम पता नहीं कर सकते कि वो डाटा बिग है या फिर स्मॉल है। तो उसके लिए फिर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया, V's, उसको नाम दिया 3 V's, जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। So the big data is not about size, it's also about the potential to uncover valuable insights by considering range of other characteristics. तो इसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये होना चाहिए 10 V's मैक्सिमम है, 3 जो है वो मेन इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेराइटी, ये 3 इंपॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेराइटी, ये 3 जरूरी है। बाकी सारी क्या है, ऑप्शनल है, वो हो तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है, आप कंफर्मेशन मिल जाती है, बट ये 3 चीजें होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब डाटा बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देन उसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मतलब स्पीड, डाटा की स्पीड, क्या, डाटा में भी स्पीड होती है, ठीक है, डाटा कोई स्टैटिक डाटा नहीं है। डाटा आप स्टॉक मार्केट का देखेंगे, स्पीड देखेंगे, तो वो सारे के सारे स्टॉक्स हर सेकंड अपना रेट बदल रहे हैं, ठीक है। ग्रेड पे देखेंगे, पावर जो डिमांड आ रही है हर सेकंड वो डिमांड कम ज्यादा होती जा रही है, तो ये जो डाटा मोशन में होता है, स्ट्रीमिंग डाटा होता है, ठीक है, तो वो भी ये इसमें आ जाता है, क्या, वेलोसिटी, डाटा की वेलोसिटी कितनी है। और तीसरा वैरायटी कितनी है, भाई एक तरह का डाटा है, स्ट्रक्चर डाटा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अलग अलग तरह का डाटा है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, तब फिर उसमें आ जाते हैं। बाकी फिर अलग अलग फील्ड्स है। ये 3 में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेलोसिटी। So volume देखें, the most obvious feature is the volume that captures the sheer scale of certain data set.
तो ये किसी को बताया फेसबुक 2.2 बिलियन कप्स ऑफ कॉफी, मतलब डाटा को बता रहे हैं कैसे फेसबुक पे जनरेट हो रहा है, कितना डाटा जनरेट हो रहा है। अनदर एग्जांपल 294 बिलियन ईमेल्स बीइंग सेंट एवरी डे। ठीक, तो ये इतना बड़ा डाटा है कि हम इसमें कितने जीरो लगाएंगे उसको भी खुद पता थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वेलोसिटी इन नियरली ऑल द एग्जांपल कंसीडर वेलोसिटी उसमें होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी बहुत मतलब तेजी से डाटा ग्रो होता है, सब मार्केट या जो सेंसर से डाटा आते हैं। देन वैरायटी, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। जो वैरायटी जो डाटा है, वेबलॉग, इमेज, सेंसर डाटा, ऑडियो, वीडियो, सब तरह का डाटा जब हो जाता है तो मिलके बन जाता है क्या, बिग डाटा। तो बाकी सारे ऑप्शनल है। और ये भी बोलता है कि जो डाटा है हमारा ओवरऑल डाटा, उसमें से मुश्किल से 10-15% ही स्ट्रक्चर डाटा है, बाकी सारा का सारा क्या है, अनस्ट्रक्चर डाटा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है। वेरिएबिलिटी, अब ये जो डाटा है, ठीक है, अब डाटा को हम क्या कर सकते हैं, हमारे किस काम का ये डाटा, ठीक है, जो डाटा है हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, कोई भी डाटा है, कोई भी काम है हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कोई भी पर्सन, तो सबसे पहला जो काम क्या रहता है, रेवेन्यू बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना। ठीक है, पैसे कमाना, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी कंपनी हो गई या कोई भी काम कर रहे हैं, वो चाहे डाटा एनालिसिस का काम हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, कैसे हमें रेवेन्यू ज्यादा कमाया जाए, पैसे ज्यादा कमाए। तो ये बिग डाटा एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, पैसे कमाने के लिए। अब बिग डाटा को एनालिसिस करके कैसे पैसे कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं अगर डाटा को एनालिसिस किया जाए तो कमा सकते हैं। हाँ, उसी के लिए चल रहा है। जैसे हमें पता लग जाता है भाई डाटा है, हम देख लेंगे भाई तो उसके पास में अमेजन के पास डाटा है, उसने देखा भाई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं, फिर डाटा उसके पास लाखों करोड़ों लोगों का तुरंत पता कर लेगा भाई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। चलो फिर वो उसकी अवेलेबिलिटी और बढ़ाई जाए, जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी और बढ़ाई जाए। वेटिंग पीरियड किस पे चल रहा है भाई, डिलीवरी या उसकी डिलीवरी टाइम कम किया जाए। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए। तो बिग डाटा में ये सारी चीजें हमें फिर क्या मिल जाते हैं, जब एनालिसिस करते हैं तो ऐसे कई सारे इंसाइट मिलते हैं जिससे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, अब जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन किस पर बेस्ड है, डेटा पर बेस्ड है। ठीक है, पहले ऐसा होता था भाई बॉस ने जो बोल दिया हाँ भाई वही सही है, या कोई मतलब बहुत ज्यादा जिसका पढ़ा लिखा पर्सन है या ज्यादा इंटेलिजेंट है उसने जो बोल दिया अपने दिमाग में आगे वही सही है। बट अब ऐसा नहीं है, अब एक नॉर्मल पर्सन भी बेहतर डिसीजन ले सकता है क्योंकि उसके पास में डेटा है। अगर आपके पास में डाटा है तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हो। उसके लिए बहुत ज्यादा पर्सन का भी इंटेलिजेंट होना ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ डाटा हो, डाटा से काम चल जाता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो पता चल जाता है डाटा को एनालिसिस करके। इनहैंस कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस मतलब को और ज्यादा सर्विस दे सकते हैं, उनका डिलीवरी टाइम कम कर सकते हैं उसका। इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, कस्टमर्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। कंपटीटिव एडवांटेज, अगर आपको कोई नई चीज यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो अपने आप में, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। भाई दो लोग हैं, एक को ये टेक्नोलॉजी आती है, वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा, तो टेक्नोलॉजी यूज करने से हमेशा हम अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करें आप तो उससे कॉस्ट बहुत जल्दी कम हो जाती है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई अभी तक ये हो रहा है तो आगे भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, तो ये सारे के सारे इसके अपने एडवांटेज हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, स्मार्ट सिटी, साइंटिफिक रिसर्च, बहुत सारे इसके अपने एडवांटेज हैं। Who should learn big data? बिग डाटा किसको सीखना चाहिए? बिग डाटा देखा जाए तो जो भी पर्सन्स हैं, तो लर्निंग बिग डाटा बिकम नेसेसरी these days to work with these unstructured and semi-structured data. बिग डाटा हैज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड कैरियर ऑप्शंस, तो मतलब है कैरियर ऑप्शंस इसके काफी ज्यादा हैं। जो यंग लोग हैं उनको मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में, क्योंकि ये इमर्जिंग फील्ड है। Big data expert can choose their career as per their interest, like big data engineer, data scientist, big data analyst, data supervisor, machine learning, business intelligence, business analytics। तो ये कई तरह के जॉब रोल्स हैं जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। Then big data को सीखने के लिए हमें क्या आना चाहिए? ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए, जावा की, डाटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डाटा कैसे स्टोर करते हैं,
बेसिक स्टैटिस्टिक्स है भाई, एनालिसिस कैसे करोगे वो थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पाइथन, जावा, एसक्यूएल, तो इनका बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, इतना भी नहीं है, बट बेसिक नॉलेज पता है तो आप उसको आसानी से सीख सकते हो। टी ब्रेक करना है, ठीक है, तभी एक छोटा सा टी ब्रेक करते हैं। कंटेंट काफी सारा है, देखते हैं कितना कवर हो पाता है।